کا پہلا پاور شو، مریم نواز کا قافلہ گجرانوالہ کی جانب رواں دوا۔ مولانا فضل الرحمان بھی نکل پڑے، بلاول بھٹو زرداری لالا موسیٰ سے گجرانوالہ پہنچیں گے۔ گجرانوالہ کے روٹ پر سٹیل کی دیواریں، جگہ جگہ کنٹینرز کی موجودگی کے باعث مریم نواز کو قافلہ روکنا پڑا۔ 2 کرینز بھی ریلی کے ساتھ ساتھ راستے کی رکاوٹیں ہٹاتی رہی۔ پہلوانوں کا شہر سیاسی اکھاڑے میں تبدیل، متحدہ اپوزیشن نے پاور شو کے لیے گجرانوالہ کے جناح سٹیڈیم میں پنڈال سجا لیا۔ اپوزیشن رہنما حکومت کو دھوبی پٹکے دینے کو تیار۔ سیاسی بیانات کی گرما گرمی، پنجاب کا سیاسی پارا چڑھ گیا۔ گجرانوالہ کے جناح سٹیڈیم میں سیاسی کارکنوں کا رش، جیالے متوالے اور JUI کے ترانوں کی گونج۔ ان کی یہ جو جعلی حکومت ہے نا، اس کا جو اینڈ ہے، اس کی شروعات ہے انشاءاللہ۔ اور عوام کے حقوق ووٹ کی عزت کے لیے نکلے ہیں، مریم نواز نے گجرانوالہ جلسہ حکومتی خاتمے کی شروعات قرار دے دیا، کہا اب سلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر بھجوا کر ہی دم لیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں اسامہ غیورہ اور میں ہوں جنت جمشید۔ بڑی خبر شامل کرتے ہیں کہ PDM کا پہلا جلسہ قافلے گجرانوالہ کے لیے رواں دوا ہے۔ مریم نواز کا قافلہ شاہدرہ چوک پہنچ گیا۔ شاہدرہ چوک پر کارکنان کی کثیر تعداد موجود ہے۔ کارکنان کا جم غفیر، مریم نواز کا قافلہ ٹریفک میں پھنس گیا۔ اسکرین پر مناظر دیکھ سکتے ہیں، نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز قافلے کو چیرتی ہوئی پہنچ رہی ہیں مرکزی جگہ کی جانب اور وہاں پر کریں گے خطاب۔ لاہور کا یہ وہ مین سپاٹ ہے، وہ پوائنٹ ہے جہاں پر مریم نواز نے قافلے کے ہمراہ پہنچنا تھا اور تمام کارکنان سے خطاب کرنا تھا۔ یہاں پر JUI فے، پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے کارکنان بڑی تعداد میں پہنچی ہیں۔ مریم نواز ہاتھ ہلاتے ہوئے کارکنان کو پاس کر رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں مین سٹیج کی جانب، جہاں پر مریم نواز خطاب کریں گی، تمام کارکنان سے مخاطب ہوں گی، منشور کے حوالے سے تفصیل دیں گی اور یہاں پر مکمل خطاب کے بعد مریم نواز اپنے قافلے کے ہمراہ گجرانوالہ کی جانب بڑھنا شروع ہوں گی۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں، دوپہر کے قریب مریم نواز کا قافلہ رائیونڈ سے روانہ ہوا تھا، بعد ازاں آہستگی سے مختلف راستوں کو پار کرتے ہوئے اب شاہدرہ چوک پہنچا ہے اور یہاں پر مرکزی پوائنٹ پر پہنچ کر تمام کارکنان سے خطاب کیا جائے گا۔ مریم نواز کے پہنچنے سے قبل کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اس حوالے سے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی قائد کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جگہ فراہم کی جائے تاکہ سیکیورٹی رسک کو دیکھتے ہوئے بہتر طریقے سے مریم نواز مرکزی سٹیج تک پہنچ سکیں۔ اور جیسا کہ اب سیاسی منظرنامے میں خاصی اہم تبدیلی آئی ہوئی ہے، 11 جماعتوں کا کٹ، 11 جماعتوں کا اتفاق PDM کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے۔ مریم نواز سرکردہ لیڈر کے دور پر PDM میں نظر آئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے اور مریم نواز نے اس حوالے سے APCs میں دیگر اہم پریس کانفرنسز میں کہا ہے کہ ہمارا کٹ، ہمارا جوڑ اور ہمارا اتفاق بہتر طریقے سے کام کرے گا جبکہ حکومت کو ٹف ٹائم دے گا۔ فیاض الحسن چوہان نے بھی کہا کہ ہم اس حوالے سے بہتر معاونت کریں گے، ہماری جانب سے کسی قسم کا رخنہ نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن آج پورا دن چلنے والی خبروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بیشتر جگہوں پر کنٹینرز لگائے گئے تھے، بہت ساری راہداریاں روکی گئی تھیں۔ شاہدرہ چوک پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے جو صبح سے اپنی لیڈر مریم نواز کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا انتظار اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز اس وقت شاہدرہ چوک پہنچ چکی ہیں۔ اور کچھ دیر قبل ہم آپ کو مناظر دکھا رہے تھے کہ مریم نواز ہاتھ ہلا رہی تھی اور کارکنان بھی وہاں پر موجود ہیں اور کارکنان صبح سے مریم نواز کا انتظار کر رہے تھے۔ مریم نواز جو کہ جاتی عمرہ سے روانہ ہوئی تھی، اب وہ شاہدرہ چوک پہنچ چکی ہیں جہاں پر وہ کارکنان سے خطاب کریں گی اور خطاب کرنے کے بعد قافلے کی صورت میں گجرانوالہ کے لیے رواں دوا ہو جائیں گی۔ گجرانوالہ کے جناح سٹیڈیم میں پنڈال سج چکا ہے، وہاں پر بھی متوالوں کی، کارکنان کی، پیپلز پارٹی کے کارکنان کی اور دیگر پارٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے اور وہاں پر بھی پنڈال سجا ہے۔ لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں تو شاہدرہ چوک سے خبر شامل کر رہے ہیں، شاہدرہ چوک کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر مریم نواز کا قافلہ پہنچ چکا ہے اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز ہاتھ ہلا
मिलाती हुई स्टेडियम की तरफ रवा दवा है। मरियम नवाज इस वक्त शाहदरा चौक पहुंच चुकी है। कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है जो कि नारेबाजी कर रही है। यहां पर मरियम नवाज खिताब करेंगी और खिताब करने के बाद काफिले की सूरत में गुजरावाला के लिए रवा दवा हो जाएंगी। शाहदरा चौक पर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। कारकुनान का जम्मे गफीर है और मरियम नवाज इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का पहला पावर शो आज गुजरावाला में होने जा रहा है। पहलवानों का शहर गुजरावाला, जहां पर पहला पावर शो होने जा रहा है। पाकिस्तान की 11 सियासी पार्टियां इस पावर शो का हिस्सा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस वक्त कारकुनान को पीछे हटा रहे हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर वहां पर मौजूद हैं जो कि कारकुनान को पीछे हटा रहे हैं क्योंकि कारकुनान का जम्मे गफीर वहां पर मौजूद है। इससे खबर हम आपको बता रहे थे कि मरियम नवाज का काफिला बत्ती चौक पर फंस चुका था, लेकिन अब खबर आपको दे रहे हैं कि मरियम नवाज का काफिला शाहदरा चौक पहुंच चुका है और इस वक्त के जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, कैप्टन सफदर वहां पर मौजूद हैं जो कि कारकुनान के साथ बातचीत कर रहे हैं और कारकुनान को पीछे हटा रहे हैं क्योंकि कारकुनान की मतवालों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है जो कि अपनी कायद मरियम नवाज का दीदार करने के लिए वहां पर मौजूद है और काफिले की सूरत में मरियम नवाज के साथ गुजरावाला भी जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा दिन ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान काफिले की सूरत में शाहदरा चौक पहुंचे। बेशतर रायबंद जाती उमरा पहुंचे, वहां पर मरियम नवाज के हमरा रवा दवा हुए और अब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं शाहदरा चौक कारकुनान से मतवालों से भर चुका है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने मंशूर के हवाले से तफसील दे रहे हैं। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर लाहौर रंग इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, बताइएगा काफिला कहाँ फंसा हुआ है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तकरीबन जो है 40 मिनट से जो है मरियम नवाज का काफिला आजादी जो इंटरचेंज है वहाँ पर जो है ना शदीद ट्रैफिक के बायस फंसा हुआ है। अब जो है ट्रैफिक हल्की हल्की सी जो है हस्ती से जो है ना आगे की जाना बढ़ रही है। इस वक्त जो है हमारे नुमाइंदे अफसान जवेद के मुताबिक मरियम नवाज का जो काफिला है वो शाहदरा चौक के करीब जो है ना पहुंच चुका हुआ है और कैप्टन सफदर जो है कारकुनों को जो है ट्रैफिक क्लियर करने के लिए जो है ना हदायत दे रहे हैं। इस वक्त आजादी चौक से शाहदरा चौक तक का जो रास्ता है वो इंतहाई जो है ट्रैफिक का जो है ना बहुत कार है, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां जो है ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। ताहम इसके बावजूद कारकुन जो है वो पुरजोश हैं और नाराबाजी कर रहे हैं। मुख्तलिफ गाड़ियों में उन्होंने पार्टी जो है वो लगाए हुए हैं। जो है ना इस वक्त शाहदरा की तरफ जाने वाले जो मुकामी रहायशी लोग हैं उनके लिए शदीद मुश्किलात का जो है ये हिस्सा बना हुआ है क्योंकि मुख्तलिफ जो जवान यहाँ जो है शाहदरा की घरों की तरफ गामजन है। शदीद ट्रैफिक के बायस जो है लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो भी फंस कर रह चुकी हुई है और खवातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े जो है काफी परेशानी में मुब्तला हैं। जो है की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। इब्राहिम लकी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद सफदर पैदल चलकर शाहदरा चौक पहुंचे और मोहम्मद सफदर की कारकुनान को शाहदरा चौक ट्रैफिक के हवाले से मिन्नत समाजत उनका कहना है कि पीछे हट जाएं, अगर पीछे ना हटे तो पूरी रात यहाँ लग सकती है। जो कारकुनान जो है उनसे गुजारिश है वो कैप्टन सफदर साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए हैं। आप तमाम कारकुनान स्टेज की तरफ आओ, आगे फटाफट चले। मरियम नवाज साहब रास्ते में फंसी हुई है और तमाम MP MNA के जो काफिले हैं वो बत्ती चौक तक पहुंच चुके हैं और कुछ आगे बाबू साहब के पास भी फंसे हैं। अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो ये गुजरावाला जलसा में ही जाएगा। आज रात यहाँ पे ही गुजारनी पड़ेगी। फलाज यासीन साहब भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। फलाज यासीन साहब ने काफी देर से ट्रैफिक खुलवा रहे हैं। फलाज यासीन साहब के जो कारकुनान हैं उनसे भी गुजारिश है कि साथों में हाथ दें। ये भाईजान, ये जो घोड़ों वाली बगी है इसको आगे करें, ये घोड़ों वाली बगी को आगे करें। आलम साहब इसको आगे करवाएं, रैपिड एक्शन फोर्स आगे करवाएं। राना इकबाल साहब बगी आगे चलाएं। राना इकबाल
कारकुनान का जमे गफीर स्क्रीन पर मुलाहिजा किया जा सकता है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर अवाम से मुखातिब थे, कारकुनान से मुखातिब थे। कहना था कि काफिला जो है वो एक शाहराह पर फंस चुका है, अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो हम गुजरावाला नहीं पहुंच सकते। अवाम से दरख्वास्त है ताउन करें, कारकुनान ख़ास तौर पर मुआवनत करें और रास्ता क्लियर करने में अपना किरदार अदा करें। 11 पार्टीज़ का गठ है और ये गठ गुजरावाला में मुनक़िद हुआ है, जबकि गुजरावाला जना स्टेडियम में अहम क़यादत भी पहुँच चुकी है। वहाँ पर वहाँ के मुक़ीम भी पहुँच चुके हैं। दीगर शहरों से ख़ास तौर पर कारकुनान मतवाले, जियाले और JUFA के कारकुनान पहले से पहुँच चुके हैं और पावर शो का इब्तिदाइया वहाँ पर देखा गया है। अब जो स्क्रीन आप देख रहे हैं मनाज़र, वो मनाज़र हैं शाहदरा चौक के, जहाँ पर ख़ास तौर पर मतवालों की बड़ी तादाद है। साथ ही साथ JUFA के कारकुनान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर कम तादाद में कारकुनान दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक बेहतर और बरतरी वाली सूरत हाल है, वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में वाज़े अक्सरियत रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ पंजाब को समझा जाता है। गुजरावाला में जलसा मुनक़िद हुआ है तो समझा जा रहा है कि गुजरावाला में जलसा हुआ है तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस जलसे को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में इतनी बेहतर अक्सरियत नहीं है और JUFA के पास भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही अहम किरदार अदा करती नजर आएगी। जैसा कि मुस्लिम लीग नून के अहम कायदीन अरकान वक्तन फवक्तन अवाम से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए मुखातिब होते रहे, अपने मंशूर से अवाम को आगाह किया है कि किस तरह से हुकूमत की कारकर्दगी बदतर से बदतर होती जा रही है। हम इसमें बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं तब जब हुकूमत अपनी नशियत से, अपने ओहदे से उतर जाए और हमें इस हवाले से मौका दिया जाए, बेहतर हुकूमत को चांस दिया जाए, जमहूरी तरीके से सारे सिलसिले को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हुकूमत वक्त पर अपोजिशन की जानिब से सिलेक्टेड होने का भी इल्ज़ाम लगता है और भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। अब सूरत हाल ये है कि पावर शो जो कि मुनक़िद हुआ है गुजरावाला में, इसका मकसद बताया जा रहा है कि अपोजिशन कितनी ताकतवर है, अवाम कितनी तादाद में उनके साथ मौजूद है। मरियम नवाज ने जाती उमरा से रवानगी से कबल कारकुनान से खिताब करते हुए कहा था कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ हो चुका है और अब हुकूमत का जाना ज़रूरी है। और अभी की जो अपडेट है वो ये है कि शाहदरा चौक पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मोहम्मद सफ्तर इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और कारकुनान से मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि वो रास्ता दें ताकि मंजिल मकसूद तक पहुँचा जा सके। और शाहदरा चौक पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज खिताब भी करेंगी और कारकुनान का लहू गरमाएंगी। खिताब करने के बाद वो काफिले की सूरत में गुजरावाला के लिए रवाना हो जाएगी। शाहदरा चौक जहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, मलिक रियाज जो कि MNA हैं, उन्होंने कारकुनान के इस पिंडाल की क़यादत की थी और अभी की सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज का काफिला इस वक्त वहां पर पहुंच गया है। कुछ देर बाद वो कारकुनान से खिताब करेंगी और कारकुनान का लहू गरमाएंगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का पहला पावर शो आज होने जा रहा है और शाहदरा से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर मतवालों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि गुजरावाला के लिए रवाना होगी, क्योंकि वहां पर मतवालों के साथ साथ जियालों की बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस पावर शो का हिस्सा है और जियालों की बड़ी तादाद इस वक्त गुजरावाला पिंडाल में पहुंच चुकी है। तफसीलात ले लेते हैं अरसलान जावेद से जो इस वक्त शाहदरा चौक पर ही मौजूद हैं। और सलान बताइएगा कि मरियम नवाज शाहदरा चौक पहुंच चुकी है, खिताब कब तक करेंगी? बिल्कुल जी, इस वक्त अगर बात की जाए शाहदरा चौक की सूरत हाल की तो ट्रैफिक शदीद जाम है, जिस वजह से मरियम नवाज यहाँ से चंद फासले पे जो है वो ट्रैफिक में फंस चुकी हैं। ये जो गाड़ियाँ इस वक्त आपको चौक में नजर आ रही हैं, इन गाड़ियों के कुछ फासले पे मरियम नवाज की गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है। कैप्टन सदर जो है वहाँ से पैदल चल के इस वक्त स्टेज पर पहुंचे हैं और स्टेज पर आकर सबसे बारहा जो है वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रास्ता जो है उसे क्लियर किया जाए। अगर रास्ता क्लियर ना हुआ तो सारी रात जो है वो यहाँ पर गुजर सकती है, क्योंकि मरियम नवाज की गाड़ी के एंड पीछे मौलाना फजलुर रहमान का काफिला भी मौजूद है जो कि ट्रैफिक में फंसा हुआ है। इस वक्त जो सारी की सारी ट्रैफिक बेहंगम हुई है उसकी वजह शाहदरा चौक बना हुआ है, क्योंकि शाहदरा चौक में जो कंटेनर पहुंचाए गए थे कारकुनों ने उन कंटेनर्स को लगाने नहीं दिया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं हो सकी थी और तमाम बहाव जो है वो शाहदरा चौक की तरफ ही रहा था। इस तमाम सूरत हाल की वजह से आप जितनी भी बसें हैं, ट्रक हैं, वो इस वक्त शाहदरा चौक में फंस चुके हैं।
जिस वजह से अब गाड़ियां आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही। इस तमाम सूरत हाल में ट्रैफिक फंसने की वजह से तमाम तर काफला मरियम नवाज का रावी पुल के ऊपर जो है वो फंसा हुआ है। रावी पुल यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे है, जहाँ से कैप्टन रिटायर्ड जो है वो खुद पैदल चल के यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि रास्ता क्लियर करा सके, लेकिन रास्ता क्लियर होता नजर नहीं आ रहा। और ये सूरत हाल जो है यहाँ पर संगीन होती चली जा रही है और वक्त में तखीर होती चली जा रही है। और कैप्टन सफदर अब जो है वो खुद स्टेज पर मौजूद हैं और मसलसल जो है वो कारकुनान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जलसा है वो तब ही मुमकिन होगा अगर यहाँ से रास्ता मिलता है। तो मरियम नवाज के रास्ते के लिए वो मुसलसल जो है यहाँ से तगोदो कर रहे हैं और स्टेज पर जो है वो खुद मौजूद जो आवाम से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और साथ नारे भी लगा रहे हैं। हुकूमत मुखालफ भी नारे लगाए जा रहे हैं और ट्रैफिक को क्लियर कराने की कोशिशों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। सबकी यही कोशिश है कि ट्रैफिक खुलेगी तो फिर ही मरियम नवाज का काफिला आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसके वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो ट्रैफिक को क्लियर नहीं करा रहे हैं और कारकुनान अपनी मददाब के तहत जो है वो ट्रैफिक खोल रहे हैं। इससे पहले कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है वो खुद भी इस वक्त ट्रैफिक में गए थे, उन्होंने भी कोशिश की थी कि ट्रैफिक किसी तरह बहाल कराई जा सके, लेकिन ये बसेज और ट्रक इस कदर बुरी तरह फंस चुके हैं कि सवाए मोटरसाइकिल के और छोटी गाड़ियों के उनके लिए जगह जरूर है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए गुजरने के लिए जगह मौजूद नहीं है, जिस वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जिनाह स्टेडियम में होने वाला जलसा जो पीडीएम का है वो खासा ताखीर का शिकार होता चला जा रहा है, खासी मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और नून लीग क़यादत जो है उसको खासा जो है वो समझ से बाहर चीजें होती नजर आ रही हैं कि कैसे जो है वो जिनाह स्टेडियम पहुंच सकेंगे, क्योंकि गुजरांवाला का 70 से 80 किलोमीटर का फासला है जो भी तय करना है, लेकिन मरियम नवाज जो है वो यहाँ पर फंस चुकी हैं, जिस वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरियम नवाज ट्रैफिक में फंस चुकी हैं और इस